Yeah. Good morning. Yes, Good ma'am. morning. Good to see you. Okay, we are live on YouTube now. So, Good morning, Dr. Bansali. Okay. So, Good morning, good everyone. morning and welcome to our first ever online celebration of our Independence Day. Before we begin, let us bow our heads in silence for a few seconds to acknowledge the efforts and sacrifices made by our freedom fighters and our brave fellow men who laid down their lives so that we could enjoy the fruits of their brave efforts this 74th Independence Day. We just stay silent for a while. Okay. I am Anushka Agarwal, and I'm the Cultural Secretary of the college for the year. And it's an honor to welcome you all on behalf of the college, the extracurricular committee, and the student council here today. To begin with, we have with us our very own principal, Dr. Rajendra Shinde, our vice principals, our chief guest for today, Dr. Gautam Dhansali from Bombay Hospital. Thank you so much for being here, sir. In normal circumstances, we would have welcomed you with flowers, but today we only have love, gratitude, and so much respect to give. We have our faculty members, our fellow Xavierites, and our cultural performers for the day. A big hello to all of those watching this live stream on YouTube. I now welcome all of you for our first ever online flag ceremony, the first of the new normal and the first of its kind. Before the onset of digital cameras, beautiful pictures were developed from negatives in a dark room. We may all be in a hypothetical dark room as of now, but we'll all develop into beautiful pictures one by one, as we Xavierites have the will to persist and be victorious, fight and succeed in any situation. With that being said, I'd like to request all of you to switch on your cameras and stand up in your respective homes for our first ever virtual flag ceremony. please unmute yourself also, all of you. Okay, if everyone's ready, I'd like to request all of you to unmute yourself. And Ruchi will be leading us today. So, Ruchi, take it away. An announcement as well. We will ask you to be seated once the national anthem is over, so you can take your seats then. Ruchi, I'd now request you to take the lead. जनगण मन अधिनायक जय जय हे हे भारत भारत भाग्य भाग्य पंजाब पंजाब सिंध सिंध गुजरात गुजरात उत्तराखंड बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जगदधि तरंगा तव शुभ नामे में जागे जागे तव तब शुभ शुभ आशीष आशीष मांगे मांगे आहे तव जय गाथा गाथा गण मंगल मंगल दायक दायक जय हे जय भारत भाग्य भाग्य विधाता विधाता जय जय हे जय 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 हिंद जय जय हिंद Thank you so much. You can all be seated now. And please mute yourselves once again. would like to put in one sentence over here. Though we could have put a recorded version of our national anthem, but we thought that it's better if everybody sings. And we do understand that there is always a net problem and there's always a lagging, but that's perfectly fine. At least from our hearts,
we are paying homage to all the freedom fighters, and we are showing our love for our country. So that's perfectly fine. Thank you. Okay. Moving forward, just like Asgard is not a place, but its people, Xavier's is not just a place, it's its people. And India, not just a country, India is its people. The diverse democracy, a place where people fought to seek independence for something larger than colonials itself. We fought for unity. We fought for freedom, irrespective of caste, religion, and creed. And that's how the entire idea revolves around this consensus. A united vision of people, that is India. We are Indians because we are many, but together we make India because we are one. With that being said, I'd now like to call upon Ms. Ruhi Jain, the Cultural Secretary, to convey a message on behalf of the entire Student Council. Thank you, Anushka. Am I audible? Yes. Yes, Ruhi. Thank you. Dear friends, on this 74th Independence Day, let us remember our forefathers, those who created the path that we walk on today. It's no secret that India has been able to achieve all that it has because of the determination, the struggle, and the sacrifice of those who came before us. On this day, let us remember that India was formed because of these valiant efforts. It's because of this that we, the students, are now the future of this country. It's now up to us to stride down these paths and create new ones of our own. In Gandhiji's often quoted words, be the change you wish to see in the world. And in these struggling times, it may seem a little difficult. But let us not forget that even the smallest acts of kindness, the smallest gestures, can make a huge difference in making a change in someone else's day or even their lives. At the end of the day, the decision is up to us. India's freedom fighters were able to be this change because of the solidarity and the camaraderie that they had between themselves. They believed that to achieve independence, they had to be dependent upon each other. They had to work together to achieve their common goal. So let us remember that as students, we depend upon our families, our friends, our classmates, our teachers, in our everyday lives. It is because of this that we are able to move ahead. So let us remember that for us to be independent, we also need to be dependent upon other people. Success does not exist in silos. So for us to truly pave the way for the next generation, for us to truly be the change we wish to see, we will have to start by setting an example when it comes to working together. We will have to start by showing how working together, how companionship, how being there for each other is as much of a strength as being independent. In these challenging times, let us be there for each other so that we are able to be truly free, each one of us. Walt Disney said that the way to get stuff done is to quit talking and begin doing. And on that note, I'd like to wish everyone a very happy Independence Day. Jai Hind. Thank you so much, Ruhi. Thank you for being our General Secretary and representing all of us and speaking such amazing words. That was really inspiring. And with that being said, I'd now like to request our principal, Dr. Rajendra Shinde, to address all of us present here today. Hello, there was some problem or my internet was not. No, sir. It's No, fine. sir. Yeah, Rui finished? I couldn't hear Rui's last part. Yes, sir, I finished. So, am I supposed to start? Yes, sir. We Yes, have sir. Yes, sir. invited you. Oh, yeah, okay. No, I lost the connection in between. Okay, So I'm okay. We sorry have about invited. that. No, it's fine. One sec. So, very good morning, नमस्कार. सबसे पहले मैं सेंट ज़ेवियर्स के सभी
सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर देश के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों और हुतात्माओं को बड़े सम्मान के साथ याद करता हूं, जिनके अमर बलिदान से आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हम लोगों में से अधिकांश लोग स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, किंतु हमने इतिहास से यह जाना है कि हमारा स्वतंत्रता संघर्ष कॉमन गोल, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। हमें विशेष रूप से नई पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता वरदान या गिफ्ट में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमसे पहली पीढ़ी ने एक भारी कीमत चुकाई है। अर्थशास्त्र का यह नियम है कि हमें हर वस्तु का मूल्य चुकाना पड़ता है। यह हम सभी की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त की गई इस स्वतंत्रता का संरक्षण करें। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पर्यावरण, जल तथा सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम पिछले 151 वर्षों से जेजुएट परंपरा में कार्य कर रहे हैं। हमारा कॉलेज देश तथा दुनिया में एकेडमिक इनोवेशन, सोशल इंक्लूजन एंड पर्सनल इंटीग्रेशन के लिए मशहूर है। पिछले 150 वर्षों में जिन जेजुएट्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, अलुमनाई और अन्य सदस्यों हमारे कॉलेज के एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिसर्च के ऊंचे स्टैंडर्ड को बनाए रखने में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की है, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन सभी को सैल्यूट करते हैं। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं, पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 की उपस्थिति में कोविड-19 से हम पीड़ित हैं। इस वर्ष हमारा देश कोविड-19 की उपस्थिति में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कोरोना वायरस से लोगों को बचाते हुए कई डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ इन्होंने अपनी जानें गंवाई है। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान देने वाले ऐसे कोरोना वॉरियर्स को हम सलाम करते हैं। साथ ही जिन पुलिस कर्मचारियों, अधिकारी, सफाई कर्मचारी, पत्रकार और वॉलंटियर्स इन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम इन्हीं समाज सेवक को सलाम करते हैं, क्योंकि उनकी समाज सेवा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह निस्वार्थ भाव से की जा रही है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक महोदय ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को संबोधित करते हुए कहा था कि कोविड-19 इस चुनौती को हमें एक अवसर में बदलना चाहिए। इसी अवसर को हमने माननीय शिक्षण मंत्री के निर्देशों के आधार पर पालन करते हुए इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की पूरी कोशिश की है। हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट ने कोरोना काल में फादर कीथ डिसूजा के गाइडेंस में धारावी के कई असंख्य परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया था। साथ ही हमने कॉलेज का हॉल, कैंटीन, फॉयर में 150 बेड लगवाकर कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की सेवा करने की हमारी मंशा जाहिर कर दी थी। कोविड-19 के दौर में हमारे मैनेजमेंट ने ऑनलाइन टीचिंग की नई संस्कृति अपनाने के लिए प्रोफेसर्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया था। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
इस तरह हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी एकेडमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पालन किया है। हमारे मैनेजमेंट के कुछ सीनियर सिटीजन्स, फादर पेसो, फादर कॉन्ड्राड और कई, इनकी तबीयत फिलहाल ठीक है लेकिन वो सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम सभी उन्हीं लोगों के लिए और जो भी हमारे परिवार से, हमारे कॉलेज के परिवार से स्वस्थ नहीं है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोविड-19 से पीड़ित सभी पेशेंट्स के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करते हुए पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir, for those inspiring words that you gave us today. And now it's an absolute honor to introduce and welcome our chief guest for the day, Dr. Gautam Chand Bhansali, who is a consultant physician at the Bombay Hospital and Medical Research Center. He's got the following qualifications: an MBBS, an MD, a FACC, a FCPS in medicine. He is also a member of the Board of Studies in Medicine and Allied MUHS in Nasik. He also published articles in his field. He has work experience that's probably as old as me or even older. He's received so many awards from the Chief Minister, the Governor, etc. I was afraid I'll fall short of words, but wouldn't be able to do justice to your work, sir. But I hope I've done some justice to this short introduction. So, sir, over to you. Respected Dais, Principal Sir, Vice Principal Madam, and all dignitaries, it's really privilege and honor for me to be here, like a very prestigious college, Xavier College. And if I am called as a chief guest of this college. It's a really great honor for me. जैसा अभी सर ने बताया 74th इंडिपेंडेंस के बारे में, जो हम लोग 74th बर्थडे मना रहे हैं हमारे देश का, यू कैन से इज ए बर्थडे ओनली और इंडिपेंडेंस डे ऑफ दिस कंट्री। इस 74th बर्थ जो हमारा देश का बर्थडे है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। हमने बहुत सारे वर्ल्ड वॉर देखे, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 देखा, या 3 होने वाला है, या इसको हम कह सकते हैं कि इस लाइक के वर्ल्ड वॉर 3 ओनली। ये वर्ल्ड वॉर से कम चीज नहीं है, ये एक ऐसा वॉर है जिसने पूरे वर्ल्ड को 5 महीने के लिए रोक के रख दिया, लोगों को घर के अंदर बैठा दिया। आज पहली बार, वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, जो पहली बार पूरे विश्व में ये हुआ कि लोग घर के अंदर बैठ गए, बाहर नहीं निकल पा रहे। एक छोटा सा वायरस, या आप कहें कि सारे वायरस जितने भी इस धरती पे वायरस है, ब्रह्मांड में वायरस है, उस सारे वायरस का अगर आप वेट करेंगे तो वो 1 ग्राम से भी कम वायरस है। 1 ग्राम से भी कम वायरस ने इंसान की इतनी हालत कर दी, या इतना मजबूर कर दिया कि लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है। अब लोग बाहर निकल नहीं पा रहे, एक डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है। इसीलिए WHO ने इसको पेंडेमिक बोला गया है कि ये पूरे विश्व में फैला गया है, पूरा वर्ल्ड इस चीज से थम गया है, रुक गया है। आज मुंबई की लोकल ट्रेन, हिस्ट्री में मुंबई की लोकल ट्रेन बारिश में भी रुकती नहीं है, रुकती है तो कुछ समय बाद फिर चालू होती है, लेकिन आज 4 महीना हो गया हमारी लोकल ट्रेन बंद है मुंबई के अंदर। ऐसा पूरा विश्व, लोग क्लब बंद है, स्कूलें बंद पड़ी है, पिक्चर हॉल बंद है, कहीं भी जाने की जगह नहीं है, लोग घर के अंदर बंद है। लेकिन हमको इस डाइवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। हमें समझना है कि ये चीज क्या है, क्या नहीं है, इससे कितना खतरा है, कितना खतरा नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। यस, इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। दिस इज हाईली कंटेजियस डिजीज, बट इट्स नॉट वेरी डेडली डिजीज। ये सार्स या ARDS या मार्स उस टाइप की उतनी खराब बीमारी नहीं है, हाईली कंटेजियस जरूर है। इससे अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम घर से बाहर निकलते हैं, इस बीमारी को इनवाइट करके घर के अंदर लेके आते हैं। हम खुद इन्फेक्ट नहीं होते, हमारे घर के बाकी सब मेंबर को इन्फेक्ट करते हैं। हमारी जो एक सोच है, हमारी जो एक मेंटेलिटी है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, जो होगा पड़ोसी को होगा, किसी और को होगा,
एक्सीडेंट होगा तो पड़ोसी को होगा, हार्ट अटैक आएगा तो पड़ोसी को आएगा, कोविड वायरस होगा तो पड़ोसी को होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हम अपने आप को बहुत बहादुर मानते हैं, बट ये वायरस ऐसा नहीं है। इस वायरस ने अमीर गरीब, सेलिब्रिटी और भिखारी किसी में भेदभाव नहीं किया है, सबको एक ही लेवल पे लाके रख दिया है। आज हमारे पास में, मैं इस कोविड-19 वायरस के बारे में हल्का सा बताता हूँ। व्हाई वी से इट्स कोविड-19, CO कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिजीज। 19 बिकॉज 2019 में सबसे पहले ये अभी डिस्कवर हुआ। ऑल्दो ये वायरस की फैमिली 1960 से है, बट सबसे पहले वुहान चाइना में आया, तो लोगों ने इसको वुहान वायरस, चाइना वायरस भी कहा, बट फाइनली WHO ने इसको कोविड-19 की उपाधि से नवाजा इसको। ये वायरस फैलता कैसे या इसमें लक्षण कैसे, मैं बहुत ही सूक्ष्म या बहुत ही कम बातों में इसको बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी सारी पब्लिक एजुकेट है इस वायरस के बारे में, सोशल मीडिया में इस वायरस के बारे में इतना आ गया है, टेलीविजन के इसके बारे में इतना आ गया, जिस सबको सब कुछ मालूम है। दो तीन चीजें जो मेन बातें मैं इस वायरस के बारे में आपको बताता हूँ, और हमारी प्रिपरेशन क्या क्या है। ये वायरस में मेन जो लक्षण आते हैं, सिम्टम्स हम जिसे कहते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स, एवरीडे हम लोग नई गाइडलाइन आ रही, नई गाइडलाइन के हिसाब से बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ सोर थ्रोट, फीवर, कोल्ड, कफ, हेडेक, बॉडी एक को ही वायरस इसका सिम्टम मानते थे। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट वो होने लगा, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मेन जो सबसे बड़ा जो डेडली पॉइंट आता है इसमें, जब पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होने लगता है, दैट इज ए वेरी मच अलार्मिंग साइन कहलाता है। इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाना चाहिए अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो। सबसे बड़ा लक्षण इसमें यही कहलाता है। ये वायरस फैलता कैसे है? ये हाईली कंटेजियस वायरस है। आप जब स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, उस टाइम में जो आपका ड्रॉपलेट है, दिस इज नॉट ए एयरबॉर्न डिजीज। ऑल्दो बीच में कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे डेटा सबमिट किए थे कि इट कैन बी एयरबॉर्न, बट फाइनली WHO ने इसको कंसिडर नहीं किया। और दिस इज नॉट ए एयरबॉर्न डिजीज, इट्स एयर ड्रॉपलेट। आपका जो ड्रॉपलेट किसी के ऊपर गिरता है, उससे ये वायरस होता है, उससे ये इन्फेक्ट होने लगता है नेक्स्ट आगे वाला व्यक्ति। इस वायरस के अंदर जो बॉडी में एंट्री पॉइंट है, वो तीन मेन एंट्री पॉइंट है, आपकी आईज, आपके नोस्ट्रिल और आपका माउथ। इससे ये वायरस आपकी बॉडी में जाता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मार्केट में गए, सब्जी लेने के लिए गए, आपने पूरा प्रिकॉशन रखा, आपको स्नीजिंग, कोल्ड, कफ कुछ नहीं है, आपने मास्क पहन के रखा, आपने वहां पे 1 मीटर का, 1.5 मीटर का फिजिकल डिस्टेंसिंग रखा, आपने सब्जी लेकर के घर में आ गए, आपने बोला कि मैंने पूरा प्रिकॉशन रखा, बट फिर भी मुझे क्यों हुआ? इसका होने का कारण ये हो सकता है कि जहाँ पे आपने वेजिटेबल लेने के लिए गए थे, जो शॉपकीपर है उसको स्नीजिंग, कफिंग था नहीं था आपको नहीं मालूम, आपके सामने यस उसने नहीं किया, बट उसका कुछ ड्रॉपलेट अगर स्नीजिंग, कफिंग किया है, वो वेजिटेबल पे गिरा है, वेजिटेबल को आपने छुआ है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आपने अपने उन हाथों को अगर फेस पे टच किया है, जो कि आदमी की प्रवृत्ति है, नेचर में है, बार बार फेस पे कहीं ना कहीं टच करते रहते हैं। एवरी टाइम बिफोर टचिंग योर फेस, you should sanitize your hand. That is the most important protocol for this. अदरवाइज अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के टच में भी आ गए, उसको हाथ भी लगा दिया, तो भी आपको नहीं होगा ये वायरस। ये तब होगा जब आपने उसके बाद अपने फेस में टच किया, जो एंट्री पॉइंट है उसको टच किया, तो वो वायरस आपकी बॉडी में जाने लगता है। काफी पेशेंट हमारे पास आज भी ऐसे हैं, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड पॉजिटिव, वाइफ नेगेटिव, दोनों साथ में रहे, खाना खाए, जबकि हम लोग बोलते हैं कि साथ में नहीं रहना है, आइसोलेशन में जाना है, फिर भी वो बाई मिस्टेक ऐसा करते हैं। बट हमने देखा है कि हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ 3 सैंपल करने के बाद भी नेगेटिव हुए, बिकॉज उन्होंने सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल किया। 3 चीजें, मास्क प्रॉपर पहनना है, जुडिशियसली यूज करना है, हर वक्त पहनने की जरूरत नहीं है। जिसको कोल्ड कफ होता है उसको मास्क पहनना है, बिकॉज उससे मास्क जो होता है सामने वाले का प्रोटेक्शन है, सामने वाले को इन्फेक्ट होने से बचाता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आपको जो स्नीजिंग होगा, कोल्ड होगा, कफ होगा, जो ड्रॉपलेट आपका गिरेगा, जनरली 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं गिरता है, इसलिए 1 मीटर की कम से कम दूरी रखो। अगर किसी को कफिंग भी हुआ तो आपके ऊपर उसका ड्रॉपलेट नहीं गिरेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सैनिटाइजर का, सैनिटाइजर इसके लिए कहते हैं क्योंकि आपको कई बार लगता है कि हमने ग्लव्स पहन लिया, हम प्रोटेक्शन में आ गए, ऐसा नहीं है। आपने किसी और का मोबाइल भी यूज किया, किसी का मोबाइल आपने अपने हाथ में लिया और काम कर रहे हैं, और उसके बाद में भी तकलीफ नहीं है, बट तकलीफ कब होती है? जब आपने फेस को टच किया है।
तब वो वायरस आपकी बॉडी में जाता है। इस वायरस के ट्रीटमेंट के लिए ऑल्दो इससे वायरल डिजीज ट्रीटमेंट की क्लियर कट गाइडलाइन अभी तक पूरा वर्ल्ड नहीं बना पाया है। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ, एजिथ्रोमाइसिन दिया, फीवर आया, कालपोल क्रोसिन डोलो वो टैबलेट दे दिया, उस टाइप का मेडिसिन चल रहा है। कुछ मेडिसिन डेवलप हुई है टोसिलिजुमैब, जिसके बारे में अभी आया कि उसका इतना यूज नहीं है। रेमडेसिविर मेडिसिन एंटीवायरल मेडिसिन है, यस इसका काफी मात्रा में यूज हुआ है, बट कैसे यूज हुआ, ये वायरस को खत्म नहीं करता है, ये वायरल के लोड को कम करता है, उसकी इन्फेक्टिविटी को कम करता है, बट वो भी कम करता है जब हम इसका टाइमली यूज करते हैं। अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वेंटिलेटर पर चला गया, उसके बाद हम यूज करते हैं तो रेमडेसिविर भी काम नहीं करती। वैक्सीन के बारे में जहां तक बात है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में बोला कि इसका लॉन्चिंग बहुत ही जल्दी होने वाला है। हम लोग हिंदुस्तान ऑलरेडी वैक्सीन में वर्ल्ड में नंबर 1 है। फेज 3 का ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल चालू हो चुका है। बहुत जल्दी मेरे हिसाब से लगभग महीना या 2 महीने के अंदर वैक्सीन आ सकता है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है हम लोगों को खुद का ध्यान खुद को रखना। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला था, आत्मनिर्भर रहना। आप अपना आप को खुद संभालो, आप किसी के भरोसे मत रहो कि वैक्सीन आएगा, ये मेडिसिन खाएंगे वो खाएंगे, किसी का नहीं। बहुत सिंपल चीज है। अभी लॉकडाउन भी खुल रहा है, काफी हद तक खुल गया, लोकल ट्रेन मोस्टली नेक्स्ट मंथ तक चालू हो जाएगी। बट जो काम गवर्नमेंट एजेंसीज को करना था, जो काम डॉक्टर्स को करना था, हेल्थ के स्टाफ को करना था, ये लॉकडाउन पीरियड में सारा काम हो चुका है। सारा काम का मतलब लोगों को एजुकेट करना कि आपको सैनिटाइजर कब यूज करना है, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क रखना, वो सब चीजें पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है। किस तरह से वायरस फैलता है उसके बारे में भी पूरे एजुकेशन वेबिनार सारे हो चुके हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी नहीं था। काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि लॉकडाउन क्यों किया गया। लॉकडाउन करने का सबसे बड़ा कारण था कि अगर नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाते उस वक्त, तो हमारे पास में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। जैसे जेवियर कॉलेज की बात है, उन्होंने अपना पूरा ग्राउंड दिया जहाँ पे बेड लगाए गए, 150 बेड लगाए गए। वो हमारे पास पहले रेडी नहीं थे, बट बाद में जब हमने ये लॉकडाउन का पीरियड हुआ, हमको समय मिल गया कि ये सब चीजें कर सकते हैं, लोग कम से कम इन्फेक्ट होंगे, तब तक हम सारी चीजें कर सकते हैं। बिकॉज लंबे टाइम तक आप लॉकडाउन को नहीं रख सकते। तो हेल्थ इंफ्रा के बारे में जो काम करना था, जंबो फैसिलिटीज डेवलप करनी थी, वो सारी हो चुकी है। अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लोगों को बाहर आना है, अल्टीमेटली काम करना है, जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना है, ध्यान रखना है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का, मास्क का जुडिशियसली यूज करना है। स्नीजिंग, कोल्ड, कफ है, ऐसे लोगों को घर पे आराम करें, अपने वर्क प्लेस पे नहीं जावे। वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना लोगों को। हम डॉक्टर लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, हमको फील्ड में जाना ही होता है। आज पिछला 5 महीना हो गया, हम लोग रोज आग से खेलते हैं, रोजाना हम लोग कोविड वार्ड में जाते हैं, रोजाना कोविड पेशेंट देखते हैं। बट अब तक जो हमारा कंक्लूजन निकला है, हम लोग रोज जा रहे हैं कोविड वार्ड के अंदर, मैं खुद रोज जा रहा हूँ, रोजाना कोविड के पेशेंट देख रहा हूँ। हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर 120 बेड हमने कोविड वायरस के लिए रखे गए, कोविड पेशेंट के लिए रखे गए। पूरा एक सेपरेट बिल्डिंग हमने कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए रखा गया है। एवरी डे आई एम ऑल्सो वर्किंग, बट हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करते हैं, ग्लव्स, मास्क, पूरा पीपी किट वगैरह सब पहन के जाके पेशेंट्स को देखते हैं। टचवुड आज 5 महीना हो गया, मेरे को इन्फेक्ट नहीं हुआ, और तो हमारे कुछ डॉक्टर्स वगैरह को इन्फेक्ट हुए हैं, बट वो भी ठीक हो गए। कुछ लोग किस्मत साथ नहीं दिया कि वेंटिलेटर भी गए और उस पर नहीं निकल पाए बाहर। ऐसी भी कुछ कोविड वॉरियर वगैरह के बारे में हुआ है। आज की जो स्थिति है हेल्थ इंफ्रा को लेकर के है, उसके बारे में मैं एक बात कह देता हूँ कि आज मुंबई के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास में 1,28,000 टोटल केस अब तक हुए हैं मुंबई के अंदर। पूरे अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारे 25 लाख के आसपास केसेस हो चुके हैं, बट एक्टिव केसेस पूरे इंडिया में 6 लाख। 6 लाख पेशेंट को अकोमोडेट करने की जगह रेडी है हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरह से मुंबई में 1,28,000 केसेस अब तक हुए हैं, लेकिन एक्टिव केस की बात की जाए तो वो 19,000 है, 19,354, 19,354 पेशेंट्स हमारे एक्टिव है। उसमें से 10,000 हमारे पास ऑक्सीजन बेड वाले पेशेंट्स है, जो ऑक्सीजन वाले बेड पे है। 10,000 के लगभग हमारे ऑक्सीजन के बेड ऑलरेडी रेडी है। 16,000 हमारे पास में डेडिकेटेड बेड है हॉस्पिटल्स के अंदर। 24,500 हमारे कोविड केयर सेंटर है, जैसे आपका जेवियर कॉलेज का है, उसमें से कोविड केयर सेंटर है जहाँ पे हम लोग पेशेंट रख सकते हैं। आज की डेट में वहाँ पे टोटल 4,000 पेशेंट ही है वहाँ पे। आज की तारीख में अगर मुंबई की बात करें तो हमारे पास में 1,800 बेड ऑक्सीजन वाले खाली पड़े हैं। हमारे जो वेंटिलेटर बेड है, 2,100 वेंटिलेटर बेड है आईसीयू के,
उसमें से हमारे 300 बेड आईसीयू वेंटिलेटर के बेड खाली पड़े हैं। पहले थोड़ी स्थिति ये थी कि बेड की मारामारी चल रही थी, बेड नहीं मिल रहा है, बहुत अलग टाइप की सिचुएशन थी। मीडिया में बहुत चीजें आ रही थी कि पेशेंट सड़क में मर रहा है, ये मर रहा है। ऑल्दो वैसी कंडीशन नहीं थी, बट किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये नया डिजीज है, नया लर्निंग है, सब नई नई चीज चल रही है। फादर अपने सन को छोड़ने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था, वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं जा पा रही थी। एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर एम्बुलेंस ओनली, कि एम्बुलेंस आएगी लेके जाएगी। टोटली नया सिचुएशन था, पूरा कियोस्क मचा हुआ था। इसलिए लॉकडाउन हुआ, उसमें सारी चीजें अरेंज की गई। हमारे पास में 74 एम्बुलेंस थी मुंबई के अंदर। फिर हमारा डिस्कशन हुआ, कमेटी मीटिंग हुई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में, और हमने ये बताया कि हमको एज सच एम्बुलेंस नहीं चाहिए पेशेंट के लिए, हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चाहिए। आप चाहे इनोवा गाड़ी कर दीजिए, सुमो गाड़ी कर दीजिए, कोई भी कार कर दीजिए। सिर्फ 10% पेशेंट ऐसे हैं जिनके लिए प्रॉपर एम्बुलेंस की जरूरत है। बाकी पेशेंट्स को जस्ट हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है, घर से हॉस्पिटल ले जाके छोड़ना है, बाकी हमको और कुछ नहीं करना है। ये आइडिया सबको अच्छा लगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। उन्होंने इमीडिएटली 2 गाड़ियां वगैरह थी मंगवाई, और आज की तारीख में 410 एम्बुलेंस कह सकते हैं आप, 410 एम्बुलेंस मुंबई के अंदर अवेलेबल है। आप फोन करते हो 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाती है। बेड को लेके जो क्योस चल रहा था, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑल्दो मैं चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई के सारे हॉस्पिटल का, जहाँ पे बेड मैनेजमेंट हम लोगों ने किया है। पहले हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल ने टोटल 700 बेड दिए थे, बाद में हमने बड़ा बड़ा करके आज की तारीख में 2800 ऑक्सीजन के बेड प्राइवेट हॉस्पिटल ने बीएमसी को दिए हैं। प्लस इसके अलावा जो वेंटिलेटर बेड हमारे पास में 42 थे, उसको बढ़ा करके हमने 590 बेड हमने वेंटिलेटर आईसीयू बेड बीएमसी को दिए हैं। और हमने एक पोर्टल डेवलप किया, हमने हमारे दोस्तों का, आईआईटी के कुछ फ्रेंड्स को बुलाया, कुछ हमारे नमस्ते हेल्थ ग्रुप है उनको बुलाया, और हमने एक पोर्टल डेवलप किया जिसमें लाइव डैशबोर्ड बना के रखा हुआ है ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। और हमने वार्ड वॉर रूम है, मुंबई में टोटल 24 वार्ड है, ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, ऐसे करके 24 वार्ड है। आप देखेंगे कि पहले बीएमसी की थोड़ी रेपुटेशन अलग हुआ करती थी, अभी पूरा चेंज हुआ। हमने वार्ड के अंदर वार्ड वॉर रूम जो बना के रखे, वहाँ पे डॉक्टर्स को बैठाया है जो 3rd ईयर और 4th ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट है, जो फील्ड में इतना काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है, तो उनको वहाँ बैठाया गया वार्ड रूम में। उनके वहां से पेशेंट को फोन जाता है कि भैया आपने टेस्ट करवाया था, आई एम सो सॉरी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आपको सिम्टम क्या क्या है, आपको तकलीफ है, हम आपको हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। इतना प्यार से बात करते हैं, जो रेपुटेशन कभी नहीं थी बीएमसी की। ट्रेंड किया गया पूरे स्टाफ को, सारे वहाँ पे डॉक्टर्स जो बैठते हैं उन लोगों को। फिर पेशेंट बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरे को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती होना है, लेकिन मेरा ड्राइवर है उसको नायर में जाना है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। वहां से एम्बुलेंस घर जाती है, डॉक्टर घर जाता है, घर को पूरा सैनिटाइज करते हैं और उन लोगों को एडमिट करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो सिस्टम को प्रॉपर प्लेस कर सकते हैं, जैसा हम चाहें हम लोग उस तरह से सिस्टम को बना सकते हैं। कहाँ हम सोच रहे थे 100 साल पहले, या दुनिया सोच रही थी 50 साल 100 साल पहले की 21वीं सदी में हम लोग चांद पे जाएंगे, वहां पे हम लोग प्लॉट लेंगे, घर बनाएंगे, ये सब प्लान चल रहा था 21वीं सदी का। लेकिन वो एक अलग आयरनी है कि 21वीं सदी में हम लोग हाथ धोना सीख रहे हैं, कैसे हाथ धोना है, कैसे क्या करना है, हम लोग वापस उसी सदी में जाकर के चीजें सीख रहे हैं। बट हम लोग हिंदुस्तानियों की अलग प्रवृत्ति है। आज अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतने एनजीओ आ गया है, इतनी सोशल सर्विसेज करने वाली संस्थाएं आ गया है। जैसे आपका जेवियर कॉलेज आ गया है, उन्होंने अपना जगह दिया, बेड मैनेजमेंट करवाया, इस तरह से जिन्होंने राशन बांटा जेवियर कॉलेज के आपके लोगों ने सबने, इस तरह से काफी सोशल सर्विसेज करने वाली संस्थाएं जो है वो आगे आई है। उन्होंने फूड पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ लोग मेडिसिन कर रहे हैं, कुछ लोग पीपी के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और यहाँ ही पॉसिबल है, बाकी वर्ल्ड में कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है। हमारा आदत है, जितना हम लोगों की आदत है, हमारा आदत ही नहीं हमारी फितरत भी है कि हिंदुस्तानी लोगों का एक कल्चर है कि हम लोग बहुत जल्दी इस तरह की जो आपदा आती है, इस तरह का जो एक पेंडेमिक टाइप का माहौल बनता है, हम लोग सब मिल के काम करते हैं, पूरा जिसको जितना बन सकता है। आज हम लोग डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे से जितना बनता है हम लोग कर रहे हैं। हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हमको पकड़ते हैं कि आप मत जाओ, लॉकडाउन का पीरियड है, बाकी सब लोग घर में बैठ के मूवी देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ बैठ के मूवी देखो। बट हमको मालूम है कि ये एक वॉर टाइप सिचुएशन है, हमको जाना है, हमको काम करना है। अगर हम अभी काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये एक हिस्ट्री लिखी जाएगी। मालूम है कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, कोई भी हादसा हो सकता है, बट आने वाले टाइम में हिस्ट्री लिखी जाएगी, या हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन हमको पूछेगी कि जब एक ऐसा टाइम आया था। ये सिचुएशन बार बार नहीं आती है, ये एक बार आया है, 100 सालों में, 1000 सालों में एक बार आया है।
आने वाली जनरेशन हमको पूछेगी कि आपने उस वक्त क्या किया था। हमको शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम लोग घर में बैठे थे। वी शुड नॉट फील गिल्ट कि नहीं हम घर में छुप के बैठ गए थे कि हमको कुछ कोरोना ना हो जाए। इसी तरह से काफी लोगों ने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर है, आज मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने बारिश भी देख रही है, गर्मी भी देख रही है, पूरा लंबा 6 मंथ का टाइम निकल गया है, वो भी इतना काम करी। सड़क पे लोगों को रोकना, उससे पूछताछ करना और उनका एटीट्यूड को भी झेलना कि मेरी गाड़ी को कैसे रोक दिया, वो कर रही है। हम लोग सैल्यूट करना चाहिए इस तरह के वॉरियर्स को जो इस तरह का काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर आके काम कर रहे हैं, रोजाना काम कर रहे हैं, एवरीडे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। जनरली भूकंप आता है, ये अर्थक्वेक वगैरह जो फ्लड आता है, एक दिन आता है, 2 दिन आता है, उसके बाद थम जाता है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चलता है। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये बहुत ही अलग चीज है। ये एवरीडे नई नई चीज आ रही है, एवरीडे नई गाइडलाइन बन रही, कभी क्वारंटाइन करने के सिस्टम बदल रहे हैं, कभी आइसोलेशन के सिस्टम बदल रहे हैं, कभी लैब टेस्टिंग कब करनी है कब नहीं करनी। हम हर दिन नई नई गाइडलाइन बना रहे हैं क्योंकि नई बीमारी और नई नई चीजें सिखाई जा रही है। आज मुंबई पूरे वर्ल्ड में एक अकेला शहर है जहाँ पे लैब टेस्टिंग बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अलाउ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में मुंबई एक अकेला शहर है जहाँ पे लैब टेस्टिंग बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अलाउ है। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे केसेस अभी उतनी मात्रा में नहीं है, काफी अच्छा कंट्रोल मुंबई के अंदर किया गया है। लेकिन इसके लिए बहुत लोगों ने मेहनत की है। मैंने बीएमसी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, गवर्नमेंट एजेंसीज को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, डॉक्टर्स को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। मैं ऑफिस में गया हूँ, अलग अलग हॉस्पिटल में घुमा हूँ, देखा हूँ लोगों ने अपना रात दिन सब छोड़ छाड़ के काम पे लगे। अधिकतर लोगों के फोन नंबर, जैसे मेरा फोन नंबर सब जगह पे डिस्प्ले, ऐसे काफी लोगों के फोन नंबर एक तरह से कॉल सेंटर बन गए। 24/7 फोन आते रहते हैं, काम करते हैं, बट सबको लगता है कि ये एक टाइम है काम करना है। और मुझे लगता है जिस जोश से, जिस होश से, इस बीमारी ये ऐसी, इसमें जोश की भी जरूरत है बट साथ में होश की भी जरूरत है, दोनों में कॉम्बिनेशन बैठा के काम करना पड़ता है। और ये सब चीजों से काम करेंगे तो मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी इस पे काबू पा लेंगे। वैक्सीन भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। अभी सिचुएशन काफी अच्छी कंट्रोल में हो रही है हमारे पूरे हिंदुस्तान में और स्पेशली मुंबई के अंदर, जो पहले बहुत डर का माहौल था। और प्लस अभी लोगों में भी समझ आ गई है कि हमको अगर बाहर निकलना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस के साथ हमें बाहर निकलना है। मुझे लगता है प्रॉपर प्रिकॉशंस, अगेन वही 3 बातें, सैनिटाइजर का बार बार यूज करना, सैनिटाइजर प्रॉपर यूज करना है, मास्क का यूज करना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसको बराबर मेंटेन करके चलना है। अगर हम 3 चीजों का बराबर ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है हम लोग इस वायरस पे बहुत ही जल्दी काबू पा लेंगे। आज इंडिपेंडेंस डे है, हम सबको इस पे संकल्प करना है कि नहीं, ये बहुत बड़ी विपदा नहीं है। यस, दिस इज हाईली कंटेजियस डिजीज बट दिस इज नॉट दैट मच डेडली डिजीज। आज हमारे हिंदुस्तान की मोर्टेलिटी रेट 3% से भी कम है, जिसके बारे में हमेशा ये कहा गया है कि हिंदुस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पुअर है। अमेरिका का नंबर 1 है, इटली का नंबर 2 है हेल्थ इंफ्रा के अंदर, बट उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है, हमारी बहुत ही इस मामले में बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने ड्यूटी की है, लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम किया। हमारा डॉक्टर्स का जनरली यही फर्ज होता है, प्लस डॉक्टर्स के अलावा बाकी सब लोगों ने, जिस लोगों को काम दिया गया, जिस लोगों को बोला कि काम के लिए आगे आना है, लोग आगे निकल के आए और सबने इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम किया है। ना सिर्फ ड्यूटी समझ के हमको 5 आवर ड्यूटी, 8 आवर ड्यूटी करना निकलना, नो, सबने इसको एक ऑनरशिप समझा है कि हमको हमारा काम करना है और हमें करना पड़ेगा। सो इंडिपेंडेंस डे पे कोविड वायरस के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में इतना ही आई थिंक काफी है। बाकी सारी नॉलेज सब लोगों को इस बारे में सब कुछ है। अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो दैट्स ऑल ओके, बट एक ही संकल्प लेना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, जो आज मोदी जी ने भी बोला है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बड़ा उस पर काम करना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, बट आगे निकलना है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को जीतने की जो आदत पड़ी हुई है, हम बहुत ही जल्दी इस चीज से बाहर निकल जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much, sir. And it was truly inspirational, everything that you're doing for all of us. And and thank you for all the information that you've given us. And I know it's a little unprofessional. We don't usually ask questions after a speech, but there is one question that has come in. And if it's okay, I'd like to ask you, is there any centralized plasma donor group for COVID? That's one of the questions. Yeah. So for plasma donor, we are doing plasma therapy also. We have certain bank also, blood bank. Like in Nair Hospital, we have one blood bank. Bombay Hospital, we have one blood bank. Lilavati Hospital and KM Hospital. 4-5 hospital we have blood bank where people come, they do the plasma donation. अभी हमने
10 दिन पहले एक प्लाज्मा डोनेशन का ड्राइव चलाया था और हमने काफी सारे प्लाज्मा डोनेशन हुए थे उसके अंदर। प्लाज्मा डोनेशन का बट अभी भी उसके अंदर अलग अलग टाइप का गाइडलाइन है। अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है जो रिकवर हुआ है, उसका अगर हम प्लाज्मा डोनेशन करते हैं तो दैट इज बेनिफिशियल रादर देन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रिकवर्ड उसका प्लाज्मा डोनेशन। बट अभी तक जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन के, उसमें मैक्सिमम पेशेंट वो आ रहे हैं जो इन्फेक्ट हो गए थे बट एसिम्प्टोमेटिक थे या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक थे, रिकवर हो गए, वो आ गए। जो क्रिटिकल थे, जो वेंटिलेटर पे चले गए थे, बाइपेट पे चले गए थे और वहां से रिकवर होके आए, वहां से आने वाले पेशेंट अभी भी कम मात्रा में है। बट हमको और ज्यादा थोड़ा इसमें ड्राइव करने की जरूरत है, थोड़ा और अवेयरनेस करने की जरूरत है। और हमारा अभी नेक्स्ट फेज अभी उसमें ही चल रहा है। ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया बट उसमें चल रहा है कि और ज्यादा प्लाज्मा डोनेशन हो जाए। हायर हॉस्पिटल में हमने डेडिकेटेड प्लाज्मा डोनेशन का एक ब्लड बैंक बना के रखा हुआ है और वहाँ पे प्लाज्मा उपलब्ध भी है, काफी अच्छी बात। Thank you, sir. Thank you so much for answering the question. And we won't be taking any more questions because sir is busy and we can do a Q&A some other time. So with that being said, we will now begin with our cultural program that our student performers have worked so hard to put together for you. I hope you have a fantastic time, and I would really like to congratulate our students because they've made done with whatever resources they have in their house. They may not have mics, they may not have proper music systems, but they've done the best they can, and they're going to be performing for us today. And our first performer is Chavi Anushka, Tayal. Yes, sir. Ask Dr. Gautam. Dr. Gautam, if you're busy, thank you Yes, sir. very much. I know your time is very valuable. So Yes. you're most welcome to continue and enjoy the program for next half an hour. But in Okay. case you are leaving, I may not be able to say thank you later on. Therefore, I'm interrupting and saying thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Again, it's an honor for me and a privilege for me to be here. Thank you. Anushka, go ahead. Sorry to interrupt. No, sir. Fine. Okay, so coming back to what I was saying, our first performer is Chavi Tayal. She's a BAMCJ rep of the Student Council, and she'll be presenting a composition she wrote herself for the occasion. Through the poem, she commemorates the sacrifice that paved the way to our freedom. So over to you, Chavi. All the best. Am I audible? Yes. Good morning, everyone. I wish you all a very happy Independence Day. I grew up listening and reading about the freedom struggle of India. And when I wrote this poem, I could only think of how brick by brick and blood by blood, our nation was built. And I hope you all will like this poem. I've named it Thank the Martyrs. I look up to the sky today, the morning of Independence Day. And with each breath that leaves my lungs, my veins croon in unison. And they sing of the soldiers who never returned, of mothers bereaved of their sons, of children orphaned in their mothers' wombs, of wives widows by the sabers of doom, of youth that picked up swords before pens, of daughters who never saw their fathers again, of teachers who taught the song of freedom, of every inch of soil drenched in martyrdom, of the blood that fueled the reign of ire, of the rain that soothed their funeral pyres, of men who embraced death with a smile, of dreams that died in hopeful eyes, of bullets that shivered in their chests, of ropes that trembled around their necks, of homes that broke and bled and burnt, of the land which lived through the partition, of the women abducted and raped and killed, of the children lost, diseased, and lynched, of the streets that saw the horror, the pain, of people who never saw those streets again, of temples that hid innocence from death, of mosques that saved and cared and fed, of wails so loud they made the heavens weep, of the chuckle of the cradle they couldn't bereave, of hope that soared and sparkled and gleamed, of the eyes that lived to see the 15th, of fighters caged and starved and beaten, of mouths who stirred my people to freedom, of minds who taught us rhyme and reason, of hands that chiseled out a glorious nation.
Let every breath we breathe today remind us of the price they paid. Remind us of the glorious night the golden bird finally took flight and soared so high and wept and roared and thanked the martyrs in heaven abode. I thank the martyrs in heaven abode. We thank the martyrs in heaven abode. Thank you so much for listening. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Shavi. That was amazing and that was really nice. Thank you so much for putting in the effort to write. You've written it beautifully. Okay. So next we have Siddhi from the humanities performing a touching poem by the legendary patriot Swatantra Veer Savarkar, describing his urge to return to his motherland. The British government had issued a warrant against him, which threatened him from coming back to India. But as he sat on that seashore, he wrote this poem in remembrance of his country and his people. So the song is Sagara Pran Talmalala. The artists are Lata Mangeshkar, Usha Mangeshkar, Meena Khadikar, Pandit Hridayanath Mangeshkar, Sudhir Phadke. The music director is Pandit Hridayanath Mangeshkar. The lyricist, as mentioned, is Swatantra Veer Vinayak Damodar Savarkar. And the music company is Saregama India Limited. Disclaimer, all the copyrights of this song belong to the original copyright holder. So, Siddhi, over to you. Namaste. Happy Independence Day to all of you. And I'll begin with my song. I hope you like it. परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा निमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा निमजसीने भूमातेच्या चरणतला तुझ दूता मी नित्य पाहिला होता मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ सृष्टीची विविधता पाहू तै जननी विरह शंकित हे झाले परी तुआ वचनाती जदी झाले मार्गत्य स्वये मीच पृष्ठवाहीन त्वरितया परत आणीन विश्वसलो या तव वचनी मी जगदनुभव योगे बनूनी मी तव अधिक शक्त धरणी मी लीन त्वरे कथून सोडिले तिजला सागरा प्राण तळमळला सागरा निमजसीने शुक पंजरीवा हरिण शिरावा पाशी ही फसगत झाले तैशी विरह कसा सतत साहुया पुढती दश दिशात मोमय होती गुण सुमने मी वेचिली या भावे कीर्तीने सुगंधा घ्यावे जरी उद्धरणी व्ययनतेच्या होसाचा हा व्यर्थ
Maharashtra. Thank you so much, Siddhi. That was indeed so beautiful. You have a beautiful voice. Thank you for taking up the time and practicing and doing all of this, even though you may not have everything available with you right now. Thank you Give so me much. this opportunity. Thank you so much. Okay. The next we have our very own Dr. Bhagwati Upadhyay, the head of the Hindi department, who will be performing a poem titled "Ab Mujhe Apna Bachpan Yaad Aane Laga Hai." So, sir, over to you. धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्राचार्य महोदय डॉक्टर आसमा मैडम और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्वरचित कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। उपाध्याय सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है मैडम? नहीं, वैसी ही है। आपका माइक्रोफोन आप थोड़ा नजदीक पकड़िए। जी, मैडम अभी आवाज आ रही है? नहीं। We'll give him a few minutes. Let him check up. Yeah. मैडम अभी आवाज आ रही है? नहीं सर। उपाध्याय सर जी, आप जरा आपका माइक्रोफोन का कांटेक्ट जो लैपटॉप पे लगाया है ना, उधर चेक कीजिए बराबर हुआ है क्या। वो पिन जरा चेक कीजिए बराबर लगी है क्या। अभी आवाज आ रही है मैडम? सुबह आपने जो गुड मॉर्निंग बोला था ना, वैसी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए वापस। तब तक मैडम अश्मा मैम, वी कैन हैव नेक्स्ट प्रोग्राम एंड देन ही कैन कम बैक। अच्छा, ठीक है। उपाध्याय सर, आप लॉग आउट कीजिए और वापस लॉग इन कीजिए। Yes, Anushka, you can. Yes. And if you're not having any audio problems, I suggest you increase your volume, because if you increase your volume, you can hear everything quite clearly. So just one instruction. Okay, so as we're waiting for Dr. Bhagwati to come back, we will have Meg from the science stream on the flute, and he's going to be performing an amalgamation of Sare Jahan Se Acha and Vande Mataram. So Sare Jahan Se Acha is a song that embodies yearning and attachment to India and was written by Muhammad Iqbal in 1904 during the very first years of the Indian freedom struggle. And Vande Mataram, the national song of India, was written by Bankim Chandra Chatterjee in the 1870s and was first sung by Rabindranath Tagore. And today, Meg is going to put his own twist to it and perform it for us today. So, Meg, over. Thank you, Anushka. Am I audible? Yes. Yes. Is there any background noise? No. Thank you. So a very good morning to everyone and a very happy Independence Day. So I'll begin my song. Hope you like it.
Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Meg. That was so beautiful. Thank you so much for taking out the time and doing this. Bhagwati sir, do we have you with us now? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी Yes, sir. Yes, sir. आ रही है जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्राचार्य महोदय डॉक्टर आशमा मैडम और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्वरचित कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अब मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। अब मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। बीता हुआ हर काल सावन बन रिमझिम बरसने लगा है। अब मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। बीता हुआ हर काल सावन बन रिमझिम बरसने लगा है। गांव की हर सुबह जब मैं नंगे पैरों गांव की हर सुबह जब मैं नंगे पैरों ओस भरी घास पर चलता था। गांव की हर सुबह जब मैं नंगे पैरों ओस भरी घास पर चलता था। सारी धरती माँ बनी गोद में समेट लेती थी। सारी धरती माँ बनी गोद में समेट लेती थी। हर शाम चांद तारों भरा आसमान हर शाम चांद तारों भरा आसमान पिता बनकर छत्र छाया प्रदान करता था। हर रोज गांव के भोले भाले नटखट सारे बच्चे हर रोज गांव के भोले भाले नटखट सारे बच्चे हमारे आंगन में आकर खेलने लगते। तब मैं उस छोटे से गांव में अपने विशाल संसार को पा जाता। तब मैं उस छोटे से गांव में अपने विशाल संसार को पा जाता। अब कई वर्षों से मेरी नौकरी मुंबई महानगर में चल रही है। अब कई वर्षों से मेरी नौकरी मुंबई महानगर में चल रही है, जहां मेरा विशाल संसार माचिस की तीलियों की भांति डिब्बे से फ्लैट में कैद होकर रह गया है। अब मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। अब मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। बीता हुआ हर काल सावन बन रिमझिम बरसने लगा है। अब मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, sir. That was such a wonderful poem. I thoroughly enjoyed it. Thank you so much. Okay. Next we. आवाज नहीं आ रही। So can you hear me now? सर आपको धन्यवाद कह रहे हैं सब। बहुत ही प्यारी कविता थी। हाँ जी, हाँ जी। Okay. Again, thank you, sir. And next we have Ruchi. Ruchi is from the humanities and will be performing in her own way Teri Mitti, a patriotic Hindi song from the movie Kesari, which pays a tribute to all the soldiers in the Battle of Saragari. The original song credits, the vocals are of Arthur Praro Mukherjee, and he's the composer as well. The lyricist is Manoj Montashir. The movie is Kesari. Disclaimer, all copyrights of this song belong to the original copyright Z Music Company. So Ruchi, over to you. यहाँ पे गई। Hello. Can you hear Yes, me? Ruchi. Yes, we can hear Yes. I think Namaskar, happy Independence Day to everybody. Ruchi, increase your volume little bit if you can of your system. I just. Yeah. Can you hear just me now? check. Yes. 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 Hello? Yeah? Yes, 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 yes. We can. Okay. Namaskar, happy Independence Day to everybody.
तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रही तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। है मेरी सब महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बही, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे हाय। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे वो खेत मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहा वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा ना सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के, मैं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you.
Thank you so much, Ruchi. And I know we really don't need to tell you this, but you're fantastic as always. You have Thank you a so much really for having me amazing here. voice. That Thank was you. superb, Thank you. Ruchi. Superb. Thank you, ma'am. Okay, and next we have our last performance for this morning, and we have Mrunmay Chauhan from DMM on the tabla with Mera Desh Hi Dharam, a Hindi patriotic song composed by Salim Suleiman. The song credits are music Salim Suleiman, lyrics Sandeep Srivastava, and singer Salim Merchant. He's also going to be performing Challa, is a song from the movie Uri, and the song credits go to singers Yomi, Vivek Hariharan, and Shashwat Sajde. And the music is by Shashwat Sajde, and the lyrics by Kumar. So, Mrunmay, all the best and take it away. थैंक यू सो मच. नमस्ते आप सभी को और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और थैंक यू सो मच आशमा मैम एंड अनुष्का और ईसीसी का मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया. सिर्फ 2 मिनट सिर्फ एक बार साउंड चेक करते हैं. अनुष्का बस मेरे को बता कि साउंड आ रहा है. ओके ऑडिबल. Yes. ये ऑडिबल है बता. Is the music audible? Yes, Mrunmay. Great. Not that much, Mrunmay. You want it to be loud or you want it to be little medium? मैम थोड़ा सा लाउड चाहिए था मगर बढ़ नहीं सकता. रूबी आप बताओ, मुझे थोड़ा कम लगा. The background we are not hearing Yes. so much. The tabla is all that is fine. Okay, then let's see how it works. ठीक है, no problem. Okay then. Yeah. Yeah, now it's audible. Yeah. Just give me a minute. Sorry, 1 minute. Okay, Google. Oh, my speaker got disconnected just. It's okay, Mrunmay, no problem. Okay, it's okay. Take your time, Mrunmay. Yeah. Okay. Okay. Okay, here we go.
Thank you so much. Thank you so much, Mrunmay. That was Hey, so Mrunmay. amazing. Amazing, amazing. Mrunmay. Thank you so much, ma'am. I think, Mrunmay, we don't need to tell you that whenever you play, you have two effects on people. Either Yes. there's always a big smile on their face, and there are Yes. tears of happiness because of how proud you Yes. make us. So Yes. thank you so much, Mrunmay, for doing this. You ended today on a very, very high note. Thank you so much. As we're coming to the end of the session, I would like to call upon Ruhi to give us a thank you speech before we can end. Thank you, Anushka. I'd like to propose a vote of thanks to our respected principal, dear teachers, staff, and students who have made it here today, whether it was through Zoom or through our YouTube live link. We are very grateful you're here today. Thank you so much for being here, as well as our chief guest who spoke so wonderfully. To our ECC committee and its head, the Cultural Secretary Anushka, thank you for making this possible, as well as our colleagues in the Student Council, and not to mention the fantastic performers who have put together such a wonderful show,
despite all the resource constraints. We are so grateful and appreciative of all your efforts. Really, thank you. And we are here today because of the love and the respect we have for our country and this college. On that note, a very happy Independence Day. Thank you for being here. Jai Hind. Thank you so much, Ruhi. Thank you for doing that. And as the word of thanks is done, I would just like to say thank you personally to everyone who's here today and the YouTube people who are watching it on YouTube. Thanks so much. And on my behalf and behalf of our college, I'd like to wish you last happy Independence Day. I hope you have a fantastic day and stay safe and stay at home. Thank you so much. Does anybody want to share something? Most welcome. Thank you very much. Thanks, sir. Just the update on fathers. Okay, They're doing well. Good. That's nice. That's great. Yeah. Fine. So we'll declare. Yes, we can. Yeah. Yes. Thank you, Ashman. Thank you, Anushka. Thanks everyone for Ruhi, being there. Thanks everyone. everyone. And bless these children. Yes. Stay safe. Thank you. Yes. Thank you so Thanks. much. Bye.